آپ کون؟ منی پوارہ کا آپ کا نام جناب؟ آپ کہاں؟ میں جسیم اختر چینئی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نام عبد الحنان ہے۔ عبد الحنان This صاحب، call is now being recorded. عبد الحنان آپ مسلمان ہیں؟ حنان عبد آپ الرحمان صاحب، مسلمان؟ میرا نام محمد جسیم اختر ہے، اور تو آپ میں نے جب فون کیا ہے تو آپ کو سلام کرنا چاہیے تھا، سلام کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، تو کریے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4691 اور ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 92 پڑھیے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف حدیثیں بعد مسلمانوں میں کو بتانا، یہ مسلمان کو بتائی جاتی ہیں۔ ہاں، حدیثیں تو مسلمان کو بتائی جاتی ہیں۔ کیا تم نے مجھے مسلمان سمجھا ہے کیا؟ نہیں بد مذہبوں کو ہم لوگ سلام نہیں تو کرتے ہیں۔ تم تو بدترین آدمی ہو، تم بد مذہبوں کو ڈائریکٹ حدیث بتانے لگے۔ پہلے تو مسلمان بناؤ نا مجھے۔ پہلے مسلمان ارے بناؤں گا میں، اس لیے کہ بیوقوف کہیں کے، دیکھیے مسلمان بناؤ پہلے مجھے۔ گالی گلوچ مت حدیث دیں۔ سنانے لگا تجھے کس نے بتایا؟ کہاں سے پڑھا ہوا ہے؟ میں آپ کو حدیث اور قرآن ہی ابے سے گدھے بتاؤں کہیں کے، مسلمان بنانا پہلے مجھے۔ گا۔ تب کلمہ پڑھیے، آپ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے۔ تو پہلے یہ بتا میں کافر ہوں؟ بالکل، اس لیے کہ آپ غیر مقلد ہو، اور غیر مقلدوں کے عقائد بہت باطل ہیں۔ نہیں، کافر ہوتا ہے غیر مقلد؟ بالکل غیر مقلد جو ہوتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ ابن عبد الوہاب نزدیک کے فالوور ہے نا، یہ کون ہے ابن عبد الوہاب نجدی؟ کون ہے؟ ان کے باپ ہیں اور ان کے مجتہد ہیں۔ تو ہمیں کیا معلوم؟ ہم نے تو کبھی کہا نہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں ہے زیادہ، تو نام سنا ہے بس۔ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب تم الو نزدیک کے کے پٹھے ہو۔ ہیں؟ اہل حدیث کہتے ہیں ڈائریکٹ کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کی حدیث کو مانتے ہیں۔ تم الو کے پٹھے ہو۔ اب اس حدیث کو کہاں ہم نے مان رہے ہیں؟ ابھی میں ہم حدیث نے سنا رہا ہم تھا نے آپ کو۔ ابن عبد الوہاب نجدی کا کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ ابن عبد چلو الوہاب سلام کرو، نزدیک کو ان لوگ چلو سلام کرو پہلے، مجدد سلام مانتے کرو، ہیں۔ سلام کرو، سلام بد مذہبوں کو سلام ہم کر نہیں جانور کرتے۔ چپا۔ سنو غور سے، بھاگو نہیں۔ مردود بھاگ گیا۔ بہت بڑا خبیث انسان ہے۔ مردود کو کیا سمجھاؤں اب میں، اس کو اپنے پٹری میں لانے کے لیے کوشش کر رہا تھا میں۔ اتنا بڑا شیطان ان لوگ، یہ ہے ان کے حال علامہ فہمہ کرتا پائجامہ غیر مقلد کے۔ اللہ، ان کو حدیث اور قرآن سے واسطہ نہیں ہے۔ ان لوگ نا بد مذہبیت کو، جو ابن عبد الوہاب نزدی نے جو دھرم دیا ہے اور ابن تیمیہ نے، اس کو مضبوطی سے یہ لوگ پکڑا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پہ مانتا ہے، ان کا عقیدہ ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جیسے دیوبندی جھوٹ بولنے پر قائل ہے، ان لوگوں کا بھی سیم وہی عقیدہ ہے۔ جسے اسماعیل دہلوی قتیل نے التوحید، کتاب التوحید لکھا تھا ابن عبد الوہاب نزدی، اس کو یہاں لا کر کے انہوں نے ایک ترجمہ، یعنی لنگڑی اردو میں، صحیح اردو نہیں، فصیح و بلیغ اردو نہیں ہے، تقویۃ الایمان آپ پڑھیں گے تو لنگڑی اردو میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، ترجمہ کیا اس کا، اور اس کا نام رکھ دیا تقویۃ الایمان۔ تقویۃ الایمان نام رکھا، لیکن اصل میں وہ تقویۃ الایمان، ایمان کو غارت کر دینے والی کتاب ہے۔ ہر پیج میں، ہر ورق میں قرآن اور حدیث سے ایسے ٹکرانے والے اور اللہ اور رسول کی ایسے گستاخیاں بھری ہوئی ہیں اس میں، معاذ اللہ۔ کیسے ان لوگ، دونوں دھرم کے لوگ، یعنی دیوبندی حضرات اور غیر مقلد، جو نام نہاد کچھ سلفی کہلاتے ہیں، کچھ جھنگوری کہلاتے ہیں، اور کیا کیا ان لوگوں میں آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ان سے مطلب نہیں ہے۔ بہرحال ان دونوں فریق کا یعنی ماوا ملجا امام اسماعیل دہلوی ہے، اور اسماعیل دہلوی کے عقیدے کو ہی فالو کرتے ہوئے، اور وہ اس سے پہلے ابن تیمیہ، ابن عبد الوہاب نزدی کو لے کر کے آتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ اللہ عرش پر ہے، اور دونوں پاؤں اللہ تعالیٰ کرسی پر رکھا ہوا ہے۔
यानी मुजस्समिया का अकीदा इन लोगों का है, समझे। तो इन लोगों को हम क्यों सलाम करें, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदमजहबों को हमें हुक्म दिया है कि ना सलाम करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदमजहब से दूर रहो और उन्हें अपने करीब ना आने दो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितना में ना डाल दें। अगर वो बीमार पड़े तो उनकी इयादत ना करो, अगर मर जाएं तो उनकी जनाजा में शरीक ना हो, उनसे मुलाकात हो तो उन्हें सलाम ना करो, उनके पास बैठो नहीं, उनके साथ पानी ना पियो, उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ शादी ब्याह ना करो, उनकी जनाजा की नमाज ना पढ़ो और उनके साथ नमाज ना पढ़ो। जबकि हदीस मौजूद है हमारे पास, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदमजहबों के कैटेगरी बहुत बताया है, समझे। एक दो हदीस नहीं, कई हदीसों में मौजूद है। बहरहाल हम इन लोगों को सलाम कैसे करें जबकि हम मुसलमान नहीं मानते हैं, इनका अकीदा बातिल अकीदा भरमार है। लेकिन एक फर्क है देवबंदी और ये गैर मुकल्लिद में, एक फर्क क्या है कि देवबंदी अपने अकायद को छुपाते हैं और इन लोग इकरार तो कर लेते हैं, समझे। और इनकी पहचान भी वाज़ेह तौर पर नुमायां होते हैं, लोग जान जाते हैं ये गैर मुकल्लिद है। लेकिन हमारे अंदर हमारी जैसे रह करके, है ना, हमारे जैसे रह करके इन लोग वहाबियत को जो नशो नुमा बोता है, लोगों में फैलाता है और चूहे के तरह ईमान को कुतर कुतर करके लोगों में गुमराहियत फैलाता है, वो है देवबंदी। तो बड़ा डेंजर देवबंदी जी। हजरत देवबंदी तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, इसलिए ना हम नहा धो करके इन लोग देवबंदी की कुटाई करने के चक्कर में रहते हैं, समझे। असल हमारे लिए खतरा जो है हमारी जैसा, यानी कभी वो मिलाद भी करता है, कभी सलाम भी पढ़ता है, हमारी मस्जिदों में हमारी तरह नमाज भी पढ़ता है, लोग फर्क नहीं कर पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो शिर्क बिदत करने लगेगा और खुद भी करेगा, उसको गलत भी करेगा भी। देखिए कहता है कि फातिहा का जो तबरुक है उसको हराम करार देता है, ये लोग फतवा मौजूद है इनके, वो हराम है। अब इसको फातिहा करके अगर दे दीजिए खाने के लिए तो पेट भर खा लेगा। हराम खोर इन लोग है, समझे। जो अल्लाह और रसूल ने हराम किया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह हदीस में मौजूद है कि कौवा हराम है। अब कौवा को सवाब समझ करके खा रहा है ये लोग, समझे। सवाब कर रहे हैं जी, ये उसे सवाब बता रहे हैं कौवे को। जी, कौवे को सवाब बताया, कौन लिखा है जानते हैं कौवे को सवाब? रशीद अहमद गंगोई बदनामे जमाना लिख छोड़ा है और लोगों को गुमराह कर दिया है, समझे। कौवा को हलाल इनके रशीद अहमद गंगोई ने लिखा है, तो उसको कुछ मैं बता दे रहा हूँ इसकी तबसरा करके। रशीद अहमद गंगोही इन लोगों का कौन है? वो एक किताब है तज़किरतुर रशीद, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 17 में लिखा है, सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद की जबान से निकलता है, और बकसम कहता हूं मैं कुछ नहीं हूं मगर इस जमाने में हिदायत व निजात मौकूफ है मेरी इत्तिबा पर। तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 17 है, समझे। तो हिदायत और निजात किसके ऊपर दारोमदार, किसके ऊपर? रशीद अहमद गंगोही की इत्तिबा पर है देवबंदियों के। अब साफ लिखी हुई ये किताब भी बहुत मोतबर है, तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 17 में देखिएगा। कौवे के मुतालिक अब गंगोही साहब से पूछते हैं, ऐ वहाबी तबलीगी जमात के मुजद्दिद, यानी मुजद्दिद मानता है ये लोग, ऐ वहाबी तबलीगी जमात के कुतुबुल इरशाद, आप क्या फरमाते हैं इसके मुतालिक? कौवे के मुतालिक सवाल हुआ। जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हों और खाने वाले को भी बुरा नहीं समझते हों, तो ऐसी जगह उस कौवे खाने वाले को सवाब होगा ना सवाब, या ना सवाब होगा ना अजाब? सवाल हुआ।
तो रशीद अहमद गंगोही अपनी कुतुबियत के इजहार करते हुए एक शख्स के सवाल के पर उसके हाल को सुन करके यूं जवाब दिया। वो क्या जवाब दिया आप बताइए, खुद ही बताइए। हमारे यूपी बिहार में माहौल क्या है कि कौवा खाना क्या समझते हैं? हराम समझते हैं ना। कौवा खाने वाले को हम क्या समझते हैं? बहुत बुरा, खबीस समझते हैं। समझे? ये तो माहौल बताता है कि किसी शहर में ऐसा माहौल हो कि वहां कौवा खाने को हराम समझते हो और कौवा खाने वाले को बुरा समझते हो। तो ऐसे माहौल में अगर कोई कौवा ज़बह करके खाए तो उसको सवाब होगा या अजाब होगा? सवाल हुआ इनसे। तो जवाब रशीद अहमद गंगोही जी क्या फरमाते हैं? सवाब होगा। फटावा रशीदिया में सफा 598 में लिखा है। तो बताइए, मैं पूछता हूँ, आपने कभी कौवा खाया है? नहीं खाया ना। हजरत जो गैर मुस्लिम मूर्ति पूछता है जी, पेड़ पौधे पूछता है, गाय को पूछता है, इससे कौवे को तो वो भी नहीं खाता। नहीं खाता है। और कभी हमारे बाप दादा ने सुना है कि कौवा खाने से सवाब होगा? नहीं ना। तो हमारे बाप दादा भी नहीं सुना कौवा खाया है, खाने से सवाब होगा। तो एक हदीस सुनाता हूं हम आपके लिए। तो ऐसी क्या है, हमारे लकड़ दादा परदादा कोई भी नहीं सुना इसी बातें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो ना तुमने कभी सुनी होगी ना तुम्हारे बाप दादा ने। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 16 है, मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 154 में है। अन्नहु समिअ अबा हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु यकूल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिरिज़ ज़मान दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यअतूनकुम मिनल हदीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम व इय्याकुम व युदिल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम। जब तुम, ये हदीस मौजूद है, अरबी इबारत में पढ़ दिया। जब हम कौवा खाने वाली इबारत बताते हैं इनको, है ना, तो इन लोग कहते हैं कि वो तो गंगोही जी ने कहा है, बताया है, वो आक है कह करके कहते, बहाना बनाता है इन लोग। लेकिन तज़किरतुर रशीद ही में जिल्द नंबर अव्वल में फिर उसके मुसन्निफ यानी उनके थानवी के ये क्या है, ये खुलफा अकाबिर में से था ये। उन्होंने रशीद अहमद गंगोही के बारे में बहुत मोतबर समझ करके लिखा है, जो देवबंदी फिरका में सबसे ज्यादा मुस्तनद और आलिम शुमार की जाते हैं इसको। ये लिखते हैं तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 178 में, बस ये कौवा जो इन बस्तियों में पाया जाता है, जो हमारे बस्तियों में पाए जाते हैं, अगर अक ना हो तो भी उसके हिल्लत में शुभा नहीं कह रहा है। समझे? तो ये अकाक का बहाना जो देवबंदी बनाता है ना, वही किताब में ही लिखी हुई है कि ये इन बस्तियों में आम तौर पर जो कौवे पाए जाते हैं वो अकाक ना हो तो भी उसकी हिल्लत में यानी उसके हलाल होने में कोई शुभा नहीं है। इससे सवाल होता है शरअ का क्या हुक्म है कि कौवा देसी जो उमूमन बस्तियों में पाया जाता है हलाल है या हराम है? फुक़हा ने बाज अक़साम कौवे को हलाल लिखा है और बाज को हराम। तो अब जरा दरियाफ्त करना मंजूर ये है कि ये कौवा किस में हराम से है या हलाल में से है, बैनो तो जरो ये किताब लिखा। तो जवाब देता है, कुतुब फ़िक़्ह में तअय्युन अक़साम गुराब में अल्फाज मुख्तलिफ हैं। समझे? और आगे लिखा, बस ये कौवा जो इन बस्तियों में पाए जाते हैं, अपने बस्ती के बारे में बता रहा है, इन बस्तियों में पाए जाते हैं, अगर अक ना हो तो भी उसकी हिल्लत में शुभा नहीं। तो मैं कहता हूं तबलीगी जमात देवबंदी वहाबी से गुजारिश करूंगा मुअद्दबाना आजीजाना, देखिए जनाब, है ना, देखिए जनाब, मुसलमान परेशान हैं, अभी गोश्त महंगा हो गया है, मछली महंगी हो गई है, सुन्नियों के नजदीक तो कौवा खाना हराम है, लेकिन अब देवबंदियों के नजदीक तो कौवा खाना जायज भी है और सवाब भी है। तो आज ही से देवबंदी और वहाबी को कहता हूँ, खुदा रा आज ही से कौवा खाना जल्दी शुरू कर दो ताकि गोश्त का दामों में कुछ गिरावट तो हो और फायदा सुन्नी उठाए,
अब देवबंदियों को तो फायदा है। अगर इस फायदे की बात बता रहा हूं तो हम मुफ्त का मशवरा दे रहे हैं और मुफ्त का गेजा भी बता दे रहे हैं। उनको कल से कौवा खाना चाहिए और सवाब भी हासिल करनी चाहिए। लेकिन हम सुन्नी मुसलमान देखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कैसे पढ़ते हैं ये गधे लोग, क्या पढ़ते पढ़ाते घास छिलते हैं, पढ़ते हैं बुखारी, उनको बुखार आता है लेकिन बुखारी नहीं आती। बुखारी सहीहुल बुखारी में जिल्द नंबर अव्वल में सफ़ा नंबर 248 हदीस नंबर इंटरनेशनल नंबर है हदीस नंबर 3315 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 2868 में देखिएगा ये हदीस मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला खमसु मिनद दवाबी मिन कतलहुन्ना व हुवा महरूम फला जुनाह अलैहि अकरब वल फारत वल कल्बु अकूर वल गुराबु वल हरारत, ये दिया है। इसका तर्जमा होता है बिला शुबह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 जानवर ऐसे हैं अगर उनको कोई हालत एहराम में भी मार दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। पहला नंबर बताए बिच्छू को, दूसरा नंबर चूहा, तीसरा नंबर काटने वाला कुत्ता, चौथा नंबर कौवा, पांचवें नंबर में चील बताया। हालत एहराम में कोई जानवर मार देंगे ना जो तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, जैसे चींटी या आपके या जूई वगैरह या खटमल, किसी को मार देंगे तो आपको दम वाजिब हो जाएगा। लेकिन 5 जानवरों को हालत एहराम में भी अगर मार दे तो उस पर कोई दम वगैरह नहीं है, उनको मारने का हुक्म है। या कौवा को, जिसके बारे में इतना खबीस शुमार किए बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। सुनन कुबरा और सुनन इब्न माजा शरीफ में हदीस नंबर 3248 में है, कौन शख्स कौवा खाएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मन याकुलुल गुराबा, कौन शख्स कौवा खाएगा, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम फासिक रखा। अल्लाह की कसम है ये हलाल जानवरों में नहीं है। ये सुनन इब्न माजा शरीफ सुनाइए इन लोगों को, हदीस पाक भेजिए। हदीस नंबर सुनन इब्न माजा शरीफ की सही हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 3248। ये हराम फरमा रहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनके कुतुबुल इरशाद गंगोही फटा हुआ रशीदिया में कहता है कि वो हलाल है, सवाब मिलेगा। तो इन देवबंदियों को जूता मारना चाहिए कि नहीं? हदीस पाक की मुखालिफत कर रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम फरमा रहे हैं और ये लोग हलाल कर रहा है, और सवाब का भी मुजदा सुना दिया इन लोग। शर्म आनी चाहिए इन लोग को। रशीद अहमद गंगोही को ये हदीस दिखाई ना दी थी, पता नहीं, वो पढ़ा लिखा था, पढ़ते हैं बुखारी, उनको बुखार आता लेकिन बुखारी नहीं आती। इसके रसूल से पढ़ता तब ना बेवकूफ लोग। ऐसा लगता है कि जाहिलों के जो देवबंदियों के जो वो थे अकाबिर, तब जाहिल थे एक दौरे पे, एकदम जाहिल, सिरे से जाहिल था। अपने अकाबिर परस्ती में इन लोग मरते हैं, और वही जो अपने अकाबिर से जो फिर जाए तो इनके फतवा भी मौजूद है, जो अकाबिर के नक्शे कदम पे ना चले वो देवबंदी नहीं है कह करके। मैं नहीं कहता, इनके ये किताब में इनकी लिखी हुई है, किताब में मौजूद है, हवाले अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा, है ना। अकाबिर के नक्शे कदम पे जो ना चले वो देवबंदी नहीं है। इनके अकाबिर, ये 1 मिनट, किताब के तो भरमार है, क्या करें, कितना दिमाग खपाए इन लोगों के पीछे। इन लोग को होश आनी चाहिए, है ना, होश के नाखून लेनी चाहिए कम से कम। अपने धर्म के पीछे इतने पागल और दीवाना है ये लोग, जो हदीस की मुखालिफत भी करता है लोग, समझे। अफसोस तो हजरत इस बात का है कि आवाम को इतना समझाने के बावजूद भी आवाम नहीं समझ पा रही। जी आवाम तो कल अनाम है ना, लेकिन समझाना हम लोग को जरूरी है। हम लोग जिम्मेदारी लिए हैं कि आवाम को समझाएंगे इंशाअल्लाह अजीज, ताकि गुमराह होने से बच जाए, है ना। हम लोग को काम है,
मैं एक दो हदीस सुना देता हूँ इसको, हाँ हाँ हाँ, वो बयान करें। और बता देता हूँ ताकि आवाम इससे फायदा उठाए और इन देवबंदियों के मकरूह चेहरा को पहचान ले और लोग इनके पीछे ना चलें और अपने आखिरत को बर्बाद ना करें। समझे? मेरा मकसद किसी को जलील करना नहीं होता है, लेकिन इन लोग अगर बात नहीं मानता है ना, जो हक बात को कबूल नहीं करता है, इस बिना पर मुझे ये आता है। लेकिन अपने घर की किताबों में इतना अमल पैरा है ये लोग। हदीस सुनिए, सहीहुल बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3314, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर जिल्द नंबर अव्वल हदीस नंबर 2861, हदीस नंबर 3863, हदीस नंबर 2865, हदीस नंबर 2867 में मुस्लिम शरीफ में 4 हदीस मौजूद है और बुखारी शरीफ में 1 हदीस मौजूद है। इसके बारे में यही हदीस मौजूद है। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, ये कहें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 जानवर जो बदजात जानते जात, जी एक जात पात ना छेड़ो कहते हैं, रहते जात बद माने बुरा, बुरे जात के हैं जिनको हालत एहराम में भी मार सकते हैं। चूहा, बिच्छू, चील, काटने वाली कुत्ता और कौवा, ये फरमाए हैं, ये हालत एहराम में भी। सुनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 317 में मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, क्या फरमाती हैं, मुझे उस शख्स पर ताज्जुब है जो कौवा खाता है, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हालत एहराम में भी कत्ल करने की इजाजत दी है और इसका नाम फासिक रखा है। अल्लाह की कसम कि कौवा हलाल परिंदों में से नहीं है। ये हदीस में मौजूद है। और इन लोग कहते हैं ना कि आला हजरत ने भी कौवा को हलाल लिखा है, फतावा रज़विया में कहता है। इन लोग कहेगा तो हाँ कहते हैं। इन लोगों को इतनी अकल शूर नहीं है। अगर फतावा रज़विया अगर मोहब्बत से पढ़ता तो वो साफ नजर आएगी। इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, ये कौवे के हमारे दयार में पाए जाते हैं और उल्लू, ये सब हराम हैं। फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 320 में मौजूद है। और अरमार शरीयत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 199 हमारी किताब है। कौवा 4 किस्म का होता है। एक वो कि सिर्फ दाना दन का ही चुगता है, जिसको फारसी में जाग कहते हैं, वो हलाल है। और जो कौवा मुर्दार ही खाता है वो हराम है। और जो कौवा पंजा से शिकार करता है वो भी हराम है। जो दाना भी खाता है और मुर्दार भी खाता है, जिसको अरबी में अकाक कहते हैं, इमाम साहब के नजदीक हलाल है, लेकिन साहिबैन के नजदीक मकरूह तहरीमी है। और अव्वल कौल मुफ्ताबही है, ये लिखा अनवार शरीयत में। तो ये कौवे के किस्म में से बताए हमारे पूरे डिटेल्स, कई कौवे है तो उनको उन बस्तियों के कौवे को हराम करार दिया, हमारे नजदीक हराम है। अब फतावा रज़विया में कौवे को साफ सरीह लिखा है, कौवा हराम है या नहीं, उल्लू हराम है या नहीं। जवाब देते हैं, ये कौवे जो हमारे दयार में पाए जाते हैं सब हराम है, उल्लू हराम है। वल्लाहु आलम। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 320 में मौजूद है। तो हमें ये लोग अपने को अगर कोई कहे कि कौवा तो तुम्हारे नजदीक भी हलाल है, तो नहीं, बेशक नहीं। दयार के हमारे गांव बस्ती में जो फिरते हैं, कई हवाले मौजूद हैं फतावा रज़विया में, अनवार शरीयत में हमारे लिए मौजूद है, और बहार शरीयत वगैरह में भी मौजूद है हमारे मसले। तो हम शरीयत और कानून हमारे लिए हदीस और कुरान है, हम हदीस और कुरान को फॉलो करेंगे। और बेशक उन लोग बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी को नहीं मानता है, बल्कि रशीद अहमद गंगोही को पैगाम और उसकी इत्तबा में निजात है इन लोग जैसा के हुक्म दिया है। तो इन लोग बेशक उनकी पैरवी करे, हम कुछ थोड़ी कहेंगे इन लोगों को। समझे जुल्फ़िकार भाई?
हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ हजरत, सुनिए। तो हम के गंगोही का जो पैरोकार हैं बेशक अपने पैरोकार करें, है ना, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो हदीस और कुरान बता जी देंगे। अगर समझना रहे तो समझे, नहीं समझना रहे तो जाओ जहन्नम में। हदीस कुरान को मानना हमारे लिए अव्वलीन शर्त है इस्लाम में। लेकिन मुसलमानों को तो मत बहकाओ कम से कम, हाँ, मुसलमानों को कम तो खाओ। मुसलमानों को मत भटकाओ, इनको बोलिए, है ना, इन हाँ, लोग सुनते भी नहीं हैं और अपने अकाबिर परस्ती में मर रहे हैं। जी जी तो हम एक रास्ता दिखा देते हैं, जिसकी मर्जी चाहे वो माने और जिसकी मर्जी ना चाहे वो जाए इन लोगों के तरीके पर। जी जी। और वो फरमाइए। वो तो गैर मुक़ल्लिद भागा ना। वो तो भाग्य बनाने का वो। इन लोग की जबान देखिए किस तरह से बातें कर रहा है, जबकि इल्मी हम्म बातें, जबकि हम इन लोगों को सलाम नहीं करते। हम्म। अच्छा हमारा हजरत, एक बात समझ में नहीं आती कि इन्होंने दाऊद शरीफ की, मुस्लिम शरीफ की हदीसें नहीं पढ़ी कि अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया है मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। जी जी, और ये वैसे अहले हदीस बनते हैं, ये अहले हदीस जो ये हदीस कौन सी हदीसें पढ़ाते हैं ये? उन लोग भी पढ़ता है, लेकिन उनके मतलब माने अपने मुराद अपने नफ्स की पैरवी करते हुए उससे मुराद उससे तावीलात कुछ और कर लेते हैं। हम्म। समझे? तो उनके मतलब तावीलात, बरिसे निकालते हैं। हाँ, जी उसके अपने मर्जी से मतलब बयान कर लेते हैं और समझ लेते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। जी जी। अल्लाह ताला चलो तमाम वो, मुसलमानों को इनसे महफूज रखे, अमन व अमान में रखे, मैं यही दुआ आमीन करूंगा। समझे? आमीन और तमाम मुसलमानों को इसके शर से निजात बख्शे। जी जी। हम्म चलो आधा घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठीक है, दुआ फरमाएं। डाल दिए आप, कल कल डाल देना। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाह।